Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. We'll start with a new chapter, that is chapter number 6, East Wind. Okay? Here see, let's read an extract from the novel Mary Poppins about a magical nanny by the same name. Mary Poppins is blown by the east wind to a number 17 Cherry Tree Lane, London, and enters the Banks' home. Take care of their children. And since Mary Poppins is no ordinary nanny, incredible fun is sure to happen. Let's find out if the Banks children like their new nanny. मीन्स ये जो स्टोरी है ये एक नॉवल में से ली गई है, मेरी पॉपिन्स, और इसमें जो कैरेक्टर है, जो नानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका भी नाम है मेरी पॉपिन, जो एक ईस्ट विंड के ब्लो होने से नंबर 17 चेरी ट्री लेन लंदन यहाँ एंटर होते हैं, जो बैंक्स करके है, बैंक्स होम, उनके घर में। क्यों? उनके जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए, टेक केयर ऑफ देयर children. Okay, now we'll start with the lesson. Why children? Said Mrs. Banks, noticing them suddenly. What are you doing there? There is your new nurse, Mary Poppins. अभी वो जो मिसेस बैंक्स थी, मीन्स वो बच्चों की जो मदर थी, वो बच्चों को बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ के देखो आपकी एक न्यू नर्स आई है जिसका नेम है मेरी Poppins. Jane, Michael say, "How do you do?" And these. She waved her hand at the babies in their cots. Are the twins? Means total कितने थे? 4 children थे. एक जेन और माइकल, और बाकी के 2 जो थे वो ट्विंस थे, जो कॉट में मतलब बेड पर थे. ओके. Mary Poppins regarded them steadily, looking from one to another as though she was making up her mind whether she liked them or not. Means वो जो मेरी पॉपिन्स नानी बन के आई थी, वो सब बच्चों को एक अलग अलग करके देख रही थी, ये कि उनका माइंड सेट करने के लिए कि वो बच्चों को लाइक करती है कि नहीं करती है. Will we do? said Michael. Michael, don't be naughty, said his mother. तो जो माइकल की मदर है वो माइकल को समझाने लगी कि आप नॉटी मत रहो करके, डोंट बी नॉटी. मेरी पॉपिन्स continued to regard the 4 children searchingly. Then, with a long, loud sniff that sneezed to indicate that she had made up her mind, she said, "I will take the position." और उनको बहुत देर ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद, फिर मेरी पॉपिन्स बोलती है कि ठीक है, अब मैं मेरी पोजीशन लेती हूँ करके. फॉर ऑल द वर्ल्ड, एज मिसेस बैंक्स सेड टू हर हस्बैंड लेटर, एज दो शी वॉज डूइंग अस अ सिंगल ऑनर का यहाँ मीनिंग देखो क्या है, स्पेशल फेवर. मीन्स मिसेस बैंक्स जो है वो उनके हस्बैंड को बोलती है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए, फॉर ऑल द वर्ल्ड, ये जो है कौन, मेरी पॉपिन्स, ये क्या कर रही है, उनके लिए एक सिंगल ऑनर कर रही है, मतलब स्पेशल फेवर कर रही है, उनके ऊपर स्पेशल फेवर, जैसे अपन एहसान भी बोल सकते हैं, एक एहसान के तौर पर कर रही है उनके बच्चों को संभालने का, ध्यान रखने का. Perhaps she is, said Mr. Banks, putting his nose round the corner of the newspaper for a movement and then withdrawing it very quickly. Means जो मिस्टर बैंक्स थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, वो बार बार अपनी मुंडी अंदर ले रहे थे और फिर बाहर कर रहे थे बात करते टाइम. When their mother had gone, Jane and Michael engaged towards Mary Poppins, who stood still as a post, with her hands folded in front of her. Now, did you come? Jane asked. How did you come? Jane asked. It looked just as if the wind blew you here. तो जो जेन था बहुत ज़्यादा नॉटी था, तो वो मेरी पॉपिन से क्वेश्चन करता है कि आप यहाँ कैसे आए हो, हमको तो लगा एक विंड ब्लो हुई, एक हवा चली और आप आ गए.
It did, said Mary Poppins bravely, as she proceeded to unwind her muffler from her neck and to take off her hat, which she hung on one of the bedpost. मतलब वो जेन को रिप्लाई करते कि हाँ मैं तो ऐसे ही आई हूँ, और बात करते करते अनवाइंड हर मफलर मीन्स उनके गले में जो मफलर था वो उतारने लगे और उनकी कैप भी उतार के रखने लगे. As it did not seem as though Mary Poppins were going to say any more, though she sniffed a great deal. Jane too remained silent, but when sniffed a great deal, Jane too remained silent. But when she bent down to undo her bag, Michael could not restrain himself. मीन्स अभी वो पहले तो जेन बहुत क्वेश्चंस करता है, लेकिन वो देखता है कि मेरी पॉपिंस जो है सिर्फ उनसे जितना पूछा गया उतना ही रिप्लाई दे रही है, जो एक्स्ट्रा बात है वो नहीं कर रही है. तो जेन रिमेन साइलेंट, चुप हो जाती. बट व्हेन शी बेंट डाउन टू अनडू हर बैग, Michael could not restrain himself. What a funny bag, he said, pinching it with his fingers. जब वो मेरी पॉपिंस अपना बैग लेके नीचे बैठती है रिस्ट्रेन करने के लिए, उसमें से सामान निकालने के लिए, तो जो माइकल है वो बैग देख के उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि कितना फ़नी बैग है. तो मेरी पॉपिंस आंसर करती है कारपेट, मतलब वो उसके बैग को क्या बोल रही है, कारपेट. सेड मेरी पॉपिंस पुटिंग हर की इन द लॉक, मतलब वो जो बैग था वो लॉक था, वो की बैग में डाल के ओपन करती है और मेरी पॉपिंस बोलती है कारपेट है, नॉट अ बैग. टू कैरी कारपेट इन यू मीन नो मेड ऑफ, मीन्स वो माइकल को लगता है कि वो बोल रही है कि इसमें कारपेट है करके. ओ सेड माइकल आई सी, बट ही डिड नॉट क्वाइट, मतलब माइकल क्वेश्चन करते ही जा रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था. By this time the bag was open and Jane and Michael were more than surprised to find it was completely empty. अब जब तक के बैग ओपन हो गया था, लेकिन सबके सरप्राइज के लिए उन लोग जब देखते हैं तो बैग तो एम्प्टी था, खाली था, उसमें तो कुछ नहीं था. Why? said Jane. There's nothing in it. जेन बोलता है कि ये तो बैग तो खाली है, इसमें जेन बोलती है तो ये तो बैग तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है. What do you mean? Nothing? demanded Mary Poppins, drawing herself up and looking as though she had been insulted. अब ये सुन के मेरी पॉपिंस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जेन को और माइकल को बोलती है कि क्या नथिंग, ये बैग में कुछ नहीं है. मेरी पॉपिंस को ऐसा लगता है कि वो कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है. नथिंग इन इट डी यू सेड, मीन्स वो बच्चों से रिटर्न में पूछती है कि नथिंग इन इट, आपको ऐसा लगता है इसमें कुछ नहीं है. एंड विद दैट शी टुक आउट फ्रॉम द एम्प्टी बैग a starched white apron and tied it around her waist. सबसे पहले वो बैग में से क्या निकालती है, एक वाइट कलर का एप्रन निकालती है और अपने वेस्ट पर बांध लेती है. नेक्स्ट शी अनपैक्ड अ लार्ज केक ऑफ सनलाइट सोप. उसके बाद एक सोप आता है ना अपना साबुन, उस साबुन निकालती है. अ टूथब्रश, अ पैकेट ऑफ हेयर पिन्स, अ बॉटल ऑफ सेंट, a small folding armchair and a box of throat lozenges. Lozenges means a small tablet जो गले के लिए लिए जाती है ना, वो मतलब वो एम्प्टी बैग जो बच्चों को लगता है उसमें से इतनी सारी सामान निकालती है, क्योंकि वो तो नानी मैजिकल नानी होती है ना, इसलिए उसमें से वो हेयर पिन्स निकालती है, देन सोप निकालती है, टूथब्रश, बॉटल, सेंट की बॉटल, एक छोटी सी आर्म चेयर, इतना सब सामान निकालती है. जेन एंड माइकल स्टेड. अब जो जेन और माइकल थे वो एकदम शॉक्ड हो गए और एकदम स्टेयर घूर के वो सब चीज़ें देखने लगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल एंड अ फर्स्ट सेशन हियर. वील कंटिन्यू द चैप्टर इन द सेकेंड पार्ट. थैंक यू.